Hello investors, welcome back to Value Invest. Today we'll discuss about an article published in Financial Express where couple of financial institutes has given their prediction on some stocks. Okay, so before we start, let me mention it very clearly. I am not a SEBI registered research analyst. I am just decoding the market informations out there and consolidating them at one place for your ease. Okay, so on that note, let's start. Nomura has given its prediction on Dixon Technology and it is pretty much bullish on this. So basically Nomura ने Dixon Technology का जो prediction दिया है कि they are very much bullish on this and उन्होंने बोला है कि इसका जो potential है this is a 36% upside potential है. So basically Nomura is bullish on Dixon Technology. The reason is, logic क्या है इसके पीछे. Dixon Technology is involved in production of DRAM and storage. Okay, जो DRAM and storage है उसका जो प्राइस है 30-40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज कर रहा है. Q3 में इसका जो प्राइस है वो 30-40% इंक्रीज हुआ है DRAM and storage का. Due to that only they are bullish and they are saying that there is upside potential of 36%. Okay, बेसिकली ये जो DRAM एंड स्टोरेज यूज़ होता है, ये मेमोरी कार्ड आपका जो चिप वगैरह आता है डेटा सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है डायनामिक रैम एंड स्टोरेज. सो दे नोमुरा इज़ बेसिकली बुलिश फॉर दैट ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजी. अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट जो है मार्च 2024 में 375 का था एंड मार्च 2025 में 1233 का हुआ. दैट मीन्स द कंपनी इज डूइंग प्रेटी गुड इन इट्स बिजनेस. सो फंडामेंटल्स जो है वो अच्छा है डिक्सन टेक्नोलॉजी का. ओके, फिर ओवर लास्ट 3 क्वार्टर्स FII होल्डिंग्स जो है वो गिरा हुआ है. दैट मीन्स अब फ्रॉम 23.22% से 3% गिर के 20.69% हुआ है. सो FII का जो होल्डिंग है वो इसमें गिरा हुआ है. ड्यू टू दैट रीज़न ओनली ये जो स्टॉक है ये नीचे गिरा हुआ है ड्यू टू दैट रीज़न. पर DII का जो होल्डिंग है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है 22.61% से 28.93 लगभग 29%, मतलब 7% राइज हुआ है DII होल्डिंग में. मतलब DII इज़ ऑल्सो प्रिटी मच बुलिश इन दिस डिक्सन टेक्नोलॉजी. ओके, सो दिस इज़ वर्थ कंसिडरेबल. मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज़ वर्थ कंसिडरेबल. आप आपके एनालिसिस लगाइए, फंडामेंटल देखिए, देन यू कैन टेक योर डिसीजन. लास्ट 6 मंथ्स में अगर देखेंगे तो फ्रॉम अ हाई ऑफ 18,331 इट हैज़ डिक्लाइन टू 12,000, लगभग 6,000 का. फ्रॉम सितंबर ओनली इट हैज़ स्टार्ट डिक्रीजिंग. लॉजिक इज सिंपल, ग्लोबल मेमोरी प्राइस राइज कर रहा है, इसी वजह से नोमुरा इज लुकिंग फॉर एन 36% अपसाइड पोटेंशियल. सो द नेक्स्ट स्टॉक वर्थ कंसिडरिंग फॉर डिस्कशन इज नोवामा ऑन दिव्यानी इंटरनेशनल. एंड लॉजिक क्या है इसके पीछे. सी, they are expecting a rise of 51.8% अपसाइड पोटेंशियल. अभी जो प्राइस करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है दिव्यानी इंटरनेशनल का, दैट इज़ 139 एंड दे आर सेइंग दैट इट कुड मूव टू 211. द लॉजिक इज दिव्यानी इंटरनेशनल एंड सफेयर फूड्स का मर्जर हो रहा है. दैट मीन्स सफेयर फूड्स is merging into Divyani International. Okay, and I have seen the fundamentals of Sapphire Foods. It is pretty good. Let's check that first. See, currently the store count of Divyani is 2039. What Divyani is doing? Divyani is actually handling the QSR model, largest QSR operations in India. Sapphire is also in same business, so Sapphire is merging into Divyani. In that context, they would be the largest QSR operating model in India. With
the fundamental wise debt to equity of Sapphire Foods is nearly null. Okay, whereas the debt to equity of Devyani International is 0.66. That means it has comparatively higher debt to equity ratio than Sapphire Foods. But after merging of Sapphire Foods, the business that Sapphire is handling, जितना भी बिजनेस Sapphire हैंडल कर रहा है उसको जो एक्सपोजर मिलेगा दैट इज यूज. ओके, इन दैट कॉन्टेक्स्ट सो दिव्यानी इंटरनेशनल का जो प्रोडक्ट्स है इट इज़ हैंडलिंग इंटरनेशनल ब्रांड इंक्लूडिंग कोस्टा कॉफ़ी, टी लाइफ, न्यूयॉर्क फ्राइज and biryani by kilos is also belongs to Devyani International. That is a well-known brand. Goila butter chicken. They are actually under Sky Gate Hospitality, and Sky Gate Hospitality is under Devyani International. So by default they are coming under Devyani International. Sapphire Food का जो ब्रांड है वो Sapphire Food हैंडल करता है KFC का आउटलेट जितना है 10 स्टेट में, पिज़्ज़ा हट का 11 स्टेट में, इंडिया में, ये सब हैंडल करता है. सो द मोमेंट Sapphire Foods will merge into ये प्रोसेस टाइम लगेगा, बट वंस दे वुड स्टार्ट ऑपरेटिंग सो द एक्सपोजर टू Sapphire Foods, बिकॉज Sapphire Foods का अभी जो आउटलेट्स है वो लगभग 900 के आसपास है, बट दिव्यानी इंटरनेशनल के पास वो आउटलेट पोटेंशियल है. सो वो एक्सपोजर मिलेगा Sapphire Foods को. दैट इज़ द रीज़न वाई Nuvama is bullish on Devyani International, and they are estimating a 52% rise in the current price. मैं फिर भी बोल रहा हूँ they are estimating, they might be wrong. मार्केट में कोई भी गलत हो सकता है. सो पहले आपका जो एनालिसिस है आप वो लगाइए, फिर देखिए कि दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट. FII का जो होल्डिंग है ये लगभग डाउन हुआ है 5%. दैट मीन्स 11.17% से 6.55% डाउन हुआ है. सो FII वी आर प्रेटी मच बियरिश इन दिस स्टॉक. सो इसी रीजन के वजह से इसके स्टॉक्स डाउन हुए थे, वो एक बार हम लोग देखेंगे. इसके बाद जब इसका 6 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करेंगे. पर DII जो है ये बुलिश है, इस पर 15.46 से 19.76% इसका होल्डिंग है, और प्रोमोटर शेयर भी यहाँ पे 62% से 61.41 को डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में अभी, वो पहले भी नेगेटिव में था पर बीच में 2022 और 2023 में ये जो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था एंड सडनली दिस इज डिक्लाइनिंग, डेफिनेट इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस. वो एक बार देखते हैं. सो लास्ट 6 मंथ्स में सितंबर से लेके अगर 1 ईयर का देखेंगे तो सी फ्रॉम 193 नाउ इट इज़ 133, लगभग 60 रुपये का गिरावट है. 60 रुपये इन द सेंस लगभग 30% का ना. 6 मंथ्स देखेंगे तो फ्रॉम अ ऑल टाइम हाई विद इन दिस 6 मंथ्स 188 से नाउ इट इज़ डिक्लाइन टू 133, 60 रुपये का. ठीक है. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. एंड सितंबर में ही शायद FII सेलिंग आया था, या द मेजर सेलिंग इज़ इन सितंबर रिपोर्ट. सो ये डिक्लाइन आया. बट अभी जो मर्जर का आ रहा है न्यूज़, इट होपफुली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए DII के लिए.